Good morning, everyone. Good morning, sir. Hope you are fine and doing well. In my previous class, we had completed with our syllabus. We had completed chapter number 14, symmetry. And with this, our T1 syllabus completed. In that chapter, we had discussed about basically the main concept is line of symmetry. Line of symmetry कब कह सकते हैं हम? तो if any shape is divided into two equal identical parts, then we can say that that particular shape had line of symmetry. And the second concept was there is rotational symmetry. So when we suppose to say that any shape have a rotational symmetry, so when any object with a fixed point if rotate till 360 degree, and if we find out that shape at least since once the same as the shape was initially, then we can say that that particular shape had rotational symmetry. Now in that three part are there: center of rotation, that means that fixed point जिसके about एक होगा, angle of rotation और कौन सा था एक पॉइंट? ऑर्डर ऑफ रोटेशन. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये होता था कि जब आप किसी शेप को 360 डिग्री तक रोटेट करते हो और जितनी बार वो शेप ओरिजिनल दिखता है वो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता था. एंड एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता था? तो एंगल ऑफ रोटेशन हमें कंप्लीट एंगल यानी 360 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कर दो तो मिल जाता था. ठीक है. एंड वी हैड कंप्लीटेड दैट ऑल द एक्सरसाइजेस व्हिच वाज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी. Now today we continue with the revision of term 1 chapter number 5, operation on the rational number from R.D. Sharma. Okay, as I said in my previous class that from the next class you all must have R.D. Sharma textbook with you people. So before we start, we discuss about operation on rational number. At least we need to clear about the definition of the rational number. है ना? So what is rational number? Can anybody please do let me know that what is rational number? रैशनल नंबर क्या होते हैं? हम रैशनल नंबर किसे कहते हैं? What is rational number? A number that are unique that we can present by P divided by Q. Or that's a half definition only. So simply what we can say that they are in can be expressed in a P by Q form where P and Q are integers and Q does not equal to 0. किसे कहेंगे रैशनल नंबर? ऐसा नंबर जिसे हम P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां P और Q जो है वो इंटीजर नहीं होगी. At that time even we had discussed about the difference between the rational number and fractional number. Only the difference between the fractional number and rational number is that in rational number we have negative integer too, where in the fractional number we represented with the only positive integers. Clear? Now after definition of the rational number, let me continue our today's topic, that is operation on rational number. There are four operations which we have done for the rational number, that is plus, minus, multiply and divide. Let me first continue with plus. ठीक है. Open up exercises 5.1 from the R.D. Sharma on page number 5.4. The question first one is given. Exercises 5.1 क्वेश्चन 1 R.D. शर्मा से हम कर रहे हैं बेटा. ठीक है. आप सबके पास R.D. शर्मा की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है. -5/7 एंड 3/7. क्या करना है हमें? एडिशन करना है. तो क्या होगा? -5/7 एंड की जगह प्लस लगा दो 3/7.
अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो दोनों रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर सिमिलर है, मतलब ये लाइक रैशनल नंबर कह सकते हैं। एज दे आर लाइक रैशनल नंबर, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, -5 + 3। बट एक बात ध्यान रहे, अगर रैशनल नंबर सीखना तो इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस साल इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर वो खुद एक चैप्टर का तो कंटेंट और कंसेप्ट है, उसके साथ साथ वो रैशनल नंबर है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसे 2 से 3 चैप्टर है जहां हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मेक श्योर आपका इंटीजर का कंसेप्ट टू द पॉइंट प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, स्पेशली अबाउट टू पुटिंग द साइन लाइक प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। बट ये अलग अलग तरीके से लगता है प्लस और माइनस के लिए और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। एंड आई होप दैट जो हमने लास्ट टाइम क्लियर किया था कंसेप्ट, ये जब रैशनल नंबर पढ़ाया था तब भी करवाया था, इंटीजर के टाइम पे भी करवाया था और अलजेब्रा के टाइम पे भी करवाया था। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ हियर सी, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 5 - 3 2 आंसर आएगा, और साइन जो आंसर में लगेगी वो बड़े नंबर की लगेगी, तो यह 5 -5 + 3 का हो जाएगा -2/7। आंसर इज -2/7। समझ में आ रहा है बेटा? देखो थोड़ा ध्यान से देखना है, रिवीजन टाइम है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ठीक है, एग्जाम से पहले फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद रैशनल नंबर का एडिशन रिपीट कभी नहीं होगा टिल द एग्जाम। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट है तो पूछते रहना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसका पहला सम देखो। एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इसमें दिया है 3/4 एंड -3/5। अब देखो 3/4 प्लस -3/5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और एक और चीज ऑब्जर्व करो ध्यान से यहाँ पे बेटा, क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना वो सिमिलर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सिमिलर करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को सिमिलर करना हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे होगा 20। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से कर दो, आपको 20 मिल जाएगा दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 15/20 और ये हो जाएगा 12/20। अब देखो बेटा हमारे पास उसका जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर आ गया बेटा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बड़ा सिंपल हो गया सर, इसको लाइक फ्रैक्शनल नंबर है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो, 15 - 12, 15 - 12 3 होता है, आंसर आ गया आपका सर 3/20, है ना? सही है ना, समझ में आ रहा है ना? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। चल, उसके बाद क्वेश्चन 3 का फर्स्ट देखो, वो क्या है, क्योंकि 8/9 प्लस -11/6 सेम है भाई, और कुछ नहीं है, सिमिलर है, बस पहले से प्लस की साइन दे रखी थी, तो 8/9 -11/6। डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है, सिमिलर करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 18, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16, 9 2 18, 11 3 33, 6 3 18। लाइक डिनोमिनेटर हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर की साइन लगेगी, तो पहले 33 में से 16 माइनस कर दो, 17 वुड बी द आंसर। बड़े नंबर की साइन यानी 33 की साइन, आंसर विल बी -17/18। जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो इसको, आंसर आया -17/18। समझ में आ रहा है? वैसे तो रिवीजन है, आना ही चाहिए समझ में, आपको आता ही है, फिर भी अगर डाउट है तो पूछो बेटा। अभी पूछ रहा हूँ, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रिवाइज हो रहा है, इतना टाइम इसके बाद हमारे पास होगा नहीं कि जो एक बार रिवाइज करवा दिया उसको फिर से रिवाइज करवाया जाए। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना बेटा। एग्जाम तुम्हारी स्कूल पे होनी है इस बार, इतना ध्यान रहे और याद रहे कि पूछ लेना अगर डाउट है तो। ऑनलाइन नहीं है, ना ही एमसीक्यूएस है,
इसके सहारे अब हम लोग नैया पार कर रहे थे। सब्जेक्टिव होगी, Yes, sir. ऑफलाइन होगी, स्कूल में होगी। गूगल देवता हेल्प नहीं करेंगे इस बार। चलो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है तो एलसीएम लेके एलसीएम आएगा 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -24/10 प्लस 43/10, -24 प्लस 43/10 प्लस माइनस माइनस कर दो। आई थिंक 19/10 वुड बी द आंसर। बड़े नंबर की साइन लगेगी, ठीक है। सिमिलर है सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में सारे क्वेश्चन सिमिलर मेथोडोलॉजी से ही सोल्व हो रहे हैं। थोड़े डिजिट डिफिकल्ट या तो प्लस माइनस की मेथड के अलग साइनिंग दिया हुआ है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सिमिलर जाता है बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई ट्रबल नहीं होना, इसमें आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, सबके एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दी, बाकी जितने रहे वो आप होमवर्क में कंप्लीट करने वाले हो, तो क्लास बुक कंप्लीट कर लो। और ये क्लास बुक बेटा ध्यान से सुनो। आरडी शर्मा वाली जो एफएनबी है ओपन करो, नए पेज पे टाइटल दो, चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन अ रैशनल नंबर, उसके बाद एक्सरसाइजेस 5.1 लिख के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के 1 सम जो करवाए वो लिख लो। और इसी बुक में अब होमवर्क कंप्लीट करना होगा इसके रिमेन सम का, ठीक है। Okay, sir. गुड, चलो लेट्स कंप्लीट द क्लास वर्क। Done, sir. क्या बात कर रहा है, इतनी जल्दी कैसे क्लास बुक हो गया तेरा? साथ साथ में लिखता गया था क्या? नहीं सर, सर मैंने इसके दो सम ऑलरेडी पहले लिखे हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बाकी वाले को लिखने दे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तक तुम ये ट्राई कर सकते हो कि इसके जो रिमेन क्वेश्चन है होमवर्क वाले वो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सर। CW done, sir. CW done, sir. Good. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir, done. No, sir. Okay, chalo. Maximum next 2 minutes. 9:37 will continue with the next exercises 5.2 concept. That's about subtraction.
सर CW। ठीक है, चलो भाई। अब आगे देखो 5.2। में पहला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन डिवाइस करेंगे कि सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड नंबर। इसमें पहला दिया है 3/8 एंड 5/8, है ना। तो मैं सेकंड यानी 5/8 में से 3/8 माइनस करना है, आंसर आ गया 2/8। बट अगर लोवेस्ट फॉर्म हो रहा है तो हम लोवेस्ट फॉर्म कंटिन्यू करेंगे इसका, ठीक है। तो आंसर फाइनली आएगा हमारा 1/4। लाइक फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर से इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर देखो। दैट इज अगेन इवैल्यूएट द वैल्यू, दैट इज 2/3 माइनस 3/5। डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको 3 से किया जाएगा। 5 2 10, 5 3 15, 3 3 9, 5 3 15, 15 कॉमन, 10 minus 9, आंसर इज 1/15। आंसर इज 1/15, ठीक है। वैसे कहने को सब्ट्रैक्शन होता है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर रैशनल नंबर में तो कब एडिशन कब सब्ट्रैक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि वो रैशनल नंबर में इंटीजर नेगेटिव है कि नहीं, ठीक है। तो वो सिमिलर ही जाता है, आप एडिशन को या सब्ट्रैक्शन, बोथ आर द मोस्टली सिमिलर इन रैशनल नंबर स्पेशली, ठीक है। लेट कंप्लीट दिस 2 क्वेश्चन एज एन क्लास वर्क। इसके जो रिमेन क्वेश्चन थे वो आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। Done, sir. Done everyone? CW done. गुड। चल आगे देखो, इसमें वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया। The sum of two rational number is 5/9 and if one of the number is 1/3, find the other. So sum of two number is
इक्वल टू क्या दिया है 5/9। वन नंबर को एक नंबर क्या दिया है 1/3। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें अदर नंबर। तो यहाँ पे टोटल दिया है सम ऑफ टू नंबर 5/9। इसमें से जो नंबर दिया वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, वो आएगा 9। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट 5/9 माइनस 3/9। अब कॉमन डिनोमिनेटर 5/3 अपॉन 2 9, then answer is 2/9। That other number is 2/9। अगर सम ऑफ टू नंबर 5/9 है और इसमें से एक नंबर 1/3 है तो दूसरा नंबर 2/9 होगा। ठीक है, चलो इसे क्लास वर्क में कंप्लीट करो। Sir, CWD. Good. Now try next sum by yourself. Question number 4. Two are done with the classwork. Do the next question by yourself and let me know your answer and show me your answer on screen. हुआ किसी से आगे वाला क्वेश्चन? क्या आंसर आया? सर एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। सर आई एम ट्राइंग।
गुड। मिला किसी को आंसर? देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज -1/3, अदर नंबर इज -12/3. You have to find out the other number. तो -1/3 माइनस ऑफ -12/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/3 प्लस 12/3, कॉमन डिनोमिनेटर है, -1 प्लस 12, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर की साइन, 11/3 would be the answer. Sir, I got answer. Good. Other number will be 11/3. Do the completion accordingly and after that try for the question number 5. वो सिमिलर ही है, इनके जैसा ही है। सर मैंने भूल से क्वेश्चन 5 कर लिया। तो अब तू क्वेश्चन 4 लिख ली। ओके सर। ठीक। क्वेश्चन 5 अगर हो जाए तो मुझे बताना आंसर क्या आता है आपका। दोस्तों तुम्हारा क्या आंसर है बेटा क्वेश्चन 5 का? सर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 11.3 आता है। 11 पॉइंट नहीं 11/3 होगा, 11/3 होगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा। क्या दिया है? द सम ऑफ टू नंबर इज -4/3 and one of the number is -12/3. Sorry, one of the number is -5. Find the other number. तो -4/3 माइनस ऑफ -5/1, इसके नीचे कुछ ना हो तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -4/3 माइनस माइनस प्लस 5/1, एलसीएम होगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -4/3 प्लस 15/3,
प्लस माइनस माइनस माइनस, तो आंसर विल बी 11/3, बड़े नंबर की साइन। ठीक है, लेट फिनिश इट एज अ क्लास वर्क। And then try for the question number 6. Once you're done with the fifth one, then try for the question number 6. Good. Anyone get number 6? Yes, sir. -41 upon 7. Sir, question 6 then, sir. I got -41/7. Very good. Chalo, that's the correct answer. -41/7. Okay. 7. So basically today what we learn about rational number. What is rational number? And the definition of rational number, that a number can be expressed in P by Q form where the P and Q are integer and Q does not equal to G. And then we continue with the operation of with the rational number, जिसमें हमने addition and subtraction के sum किए, जिसमें हमने like fractional number और unlike fractional number के sum किए, और उसके साथ there are few word problems that we practiced. So today's homework is about to complete exercises 5.1 as well as 5.2 till question 6. 5.2 till question 6. Now when you will come to the school in next week 3rd of September, we'll continue with this part. Okay, इसका रिवीजन फिर से रिपीट नहीं होगा, हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt? No, sir. No, sir. Good. चलो, तो मुझे अटेंडेंस लेने दो. अटेंडेंस आप चेक बॉक्स में दे देना, ठीक है? और सयान दर्शिता दूध. चलो, प्रियांशु आद्रोजा, अयानंदानी, देव भद्रकिया, मानव बावरवा, राम चोपड़ी, ध्रुव जेटलोजा. चेट बॉक्स समझ में आता है बेटा आप लोगों को? आद्या, राधिका सुंदरा, हर्ष कावर, ईश्वा कावर, खुशी कुंडारिया, दर्शिता, रवि कुमार, वेदांत, सैना पाठक, नंदन सौसानी, प्राप्ति टोरिया, ऋषिका उकानी, सुहानी विरमगाम. Okay guys, bye everyone. See you all after the vacation at school. Bye everyone. Take care, stay safe.